Hello students, good morning. Welcome back to the English class. We are doing chapter 5 verbs in English grammar, and till now we have learnt that the words which express some action and possession are called verbs, and basically there are two kinds of verbs, main verbs and auxiliaries. And we have seen that there are 6 kinds of main verbs: transitive verbs, intransitive verbs, finite verbs, non-finite verbs, regular verbs and irregular verbs. So in today's class we're gonna see the kinds of auxiliaries, which means helping verbs के कितने kinds हैं हम ये पढ़ेंगे. Basically there are 3 kinds of auxiliaries. Okay, main verbs के आपने 6 kinds पढ़ लिए. Now we have 3 kinds of auxiliaries. Helping verbs या auxiliaries के 3 kinds होते हैं. What are they? The first one is called primary auxiliaries. Primary auxiliaries क्या होते हैं? The verbs which are different forms of main verbs as like do, be are called primary auxiliaries. Do, be, has, have. So ऐसे verbs जो main verb तो होते ही हैं, साथ में उनके दूसरे फॉर्म्स भी होते हैं, मीन्स दूसरे सेंस में भी उनको यूज़ किया जाता है. ऐसे वर्ब्स को प्राइमरी ऑक्सिलरीज कहते हैं. जैसे डू मीन्स होता है करना, बी मीन्स होता है होना, हैव मीन्स होता है पास में होना, मीन्स आपके पास कुछ होना. जैसे आई हैव ए बुक, मेरे पास एक किताब है, लाइक दिस. लेकिन इन तीनों ही मेन वर्ब का यूज़ दूसरे फॉर्म्स में भी होता है. एज लाइक लेट्स सी द एग्जाम्पल्स. डू, डिड, डज. अब आपको बता दूं, लेट मी टेल यू दैट डू का यूज़ मेन वर्ब की तरह तो होता ही है, जैसे कि काम करना, आई डू दिस वर्क, मैं ये काम करती हूँ. लेकिन डू इज़ यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब ऑल्सो. आपको पता होगा कि डू का यूज़ प्रेजेंट टेंस में करते हैं. डू प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है, एज लाइक आई डू नॉट नो, आई डोंट नो. आई इज़ प्लूरल सब्जेक्ट, करेक्ट. So helping verb here is do. Then we add not. I do not know, I don't know. इसी तरह से present tense में, negative sentence में, when you have singular subject, that time you use does not. She does not know. Or you can say she doesn't know. Now in the past tense you say that I didn't know. I didn't know, मुझे नहीं पता था. Which means here we see that we use do as helping verbs also. So they are functioning other than the main verbs. Other forms of main verbs are called primary auxiliaries. Okay, remember that. Now second one, be. As like be means होता है होना, तो इसी तरह से इसके अलग फॉर्म्स हम यूज़ करते हैं टेंस के अकॉर्डिंगली. इज, एम, आर, ये प्रेजेंट टेंस कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ करते हैं हम, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में. इसी तरह से वॉज, वर, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, जो कि बी की ही फॉर्म्स हैं, मीन्स होना. आई एम डूइंग दिस वर्क मीन्स ये काम हो रहा है, मैं ये काम कर रहा हूँ. शी इज़ फ्लाइंग, वो पतंग उड़ा रही है, मीन्स ये काम हो रहा है, पतंग उड़ रही है, होना. तो इन द सेम सेंस बी को हम लोग मेन वर्ब की तरह भी यूज़ करते हैं और हेल्पिंग वर्ब की तरह भी. तो इस तरह से जो मेन वर्ब भी है उसका अदर फॉर्म्स में भी यूज़ हो रहा है, एज एन ऑक्सिलरीज भी यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए वो क्या है, प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं. थर्ड वन, हैव. हैव मीन्स होता है कुछ होना आपके पास. आई हैव 4 वॉचेस, मेरे पास 4 घड़ियाँ हैं. यहाँ पे आपने यूज़ किया हैव as main verb. Okay, but you also use has, have, had as helping verb in present perfect or past perfect also, correct. आप have, has का यूज़ tenses में भी करते हो as helping verbs. auxiliaries की तरह भी इनका यूज़ है, जैसे कि present perfect में we use has with singular subject, have with plural subject, correct. And we use had in past tense with both kinds of subjects, means singular and plural. And in future tense we use will have, shall have, correct.
which means we use do, be, have as main verbs also, but auxiliaries verbs also. So ये मेन वर्ब जो होते हैं इनका दूसरे फॉर्म से में यूज़ होना इनको क्या बनाता है? प्राइमरी ऑक्सिलरीज. ओके, सो द वर्ब्स विच आर different form of main verbs are called primary auxiliaries, and they are do, be, have. Okay, now see the verbs which are formed by combining different forms of have and been are called compound primary auxiliaries. जब have और been दोनों को combine करके मीन्स एक साथ लिखा जाता है सेंटेंस में टेंस के अकॉर्डिंगली, तो उसे उस वक्त क्या बोलते हैं? कंपाउंड प्राइमरी ऑक्सिलरीज, क्योंकि ये आपस में कंबाइन करके बनाए गए, जोड़ करके. जैसे कि हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन. करेक्ट. शी हैज़ बीन एब्सेंट सिंस मंडे. हेयर हैज़ बीन क्या है? कंपाउंड प्राइमरी ऑक्सिलरीज. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. लेट्स गो फर्दर. सेकेंड टाइप ऑफ ऑक्सिलरीज are called modal auxiliaries. The verbs which express various modes of verbs are called modal auxiliaries. Various modes of verbs, which means ऐसे verbs जिनका अलग अलग सेंस में मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ब्स की तरह यूज़ होता है, उन्हें ही मॉडल ऑक्सिलरीज बोलते हैं. जैसे कि कैन. कैन मीन्स होता है सकना. करेक्ट. इसका यूज़ हम डिफरेंट मोड्स में या डिफरेंट टाइप्स से करते हैं. जैसे कि व्हेन आई से आई कैन डू दिस, आई कैन ड्राइव द कार, मैं कार चला सकती हूँ. आपने यहाँ पर स्ट्रेंथ, पावर के या टैलेंट के बेस पे इसको यूज़ किया. लेकिन कैन का यूज़ आप रिक्वेस्ट करने के लिए किसी से बहुत ही हम्बली कुछ कहते हैं जब, एज लाइक कैन यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़, तब भी यूज़ करते हो आप. क्या आप मेरे लिए, क्या मुझे आप एक गिलास पानी दे सकते हो? तो यहाँ पे आपने, आपका सेंस क्या है? दैट यू आर हेयर मेकिंग ए रिक्वेस्ट टू दैट पर्सन. सो कैन इज़ यूज्ड इन बोथ टाइप्स. अब इसमें क्या हुआ? हमने दो तरीके से इसको यूज़ किया. इसी तरह से कुड. कुड कैन का पास्ट है, यानी कि पास्ट टेंस में कैन की जगह हम कुड का यूज़ करते हैं, एज लाइक कर सकते थे. लेकिन जैसे आप बोलते हो मैं ये नहीं कर सका, आई कुडंट डू दैट, तो पास्ट टेंस में आपने यूज़ किया उस चीज़ के लिए. लेकिन कुड का यूज़ आप बहुत ही ज़्यादा, जब आप बहुत ही ह्यूमिलिटी के साथ, बहुत ही हम्बलनेस के साथ किसी से कुछ कहते हो, परमिशन लेते हो, तब भी यूज़ करते हैं कुड का. करेक्ट. एज लाइक कुड यू डू दिस फेवर टू मी, क्या आप ये फेवर मुझ पे कर सकते हैं? तो इस तरह से इस सेंस में भी इसका यूज़ करते हैं. इसी तरह से मे मीन्स होता है शायद. जब आप बोलते हो मे बी यू आर राइट, शायद आप सही हो. लेकिन मे का यूज़ आप परमिशन लेने के लिए भी करते हो. जैसे मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ जाऊं? सो इन द से मीन्स एक ही वर्ब का यूज़ डिफरेंटली हो रहा है. करेक्ट. तो वेरियस मोड्स ऑफ वर्ब्स वी आर हैविंग एज मॉडल ऑक्सिलरीज. तो ऐसे ही वर्ब्स को जिनका यूज़ डिफरेंट टाइप से होता है, उन्हीं वर्ब्स को हम मॉडल ऑक्सिलरीज कहते हैं. एज लाइक माइट, मस्ट, ought, to, shall, should, will, used to, need, dare, etc. Okay, let's go further. Causal auxiliaries. Causal auxiliaries, the verbs get, have and make in association with other verbs convey sense of causation by the subject are called causal auxiliaries. Causal auxiliaries show that a person does not choose to do an action themselves, but they are asked to do it by another person who has some kind of power. Okay, as like use of get to compensation in terms of money or something else. Get का use compensation, money की compensation में के सेंस में भी यूज़ किया जाता है और दूसरे तरीके से भी यूज़ किया जाता है. As like when I say, are you getting what I am saying? Have you got what I said?
इसका मतलब यहाँ पे गेट का मतलब क्या है? समझना, उस चीज को समझना। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? क्या आप समझ रहे हो जो भी मैं कह रही हूँ? हैव यू गॉट इट? क्या तुम इसको समझ गए? इसी तरह से मनी के कंपनसेशन में भी गेट वर्ड का यूज करते हैं, दूसरे सेंस में भी इसका यूज करते हैं। ओके, एज लाइक द कस्टमर गॉट द बार्बर टू कट हिज हेयर। गॉट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ गेट। ओके, तो इस तरह से भी इसका यूज किया हमने। इसी तरह से यूज ऑफ हैव, टू म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द एजेंट ऑफ द वर्ब। हैव का यूज भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, जब सब्जेक्ट और जो एक्शन को कर रहा है उस एजेंट के बीच में जब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, उस सेंस में भी हैव का यूज करते हैं। ओके, एज लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, द कस्टमर हैड द बार्बर कट हिज हेयर। ओके, एज लाइक when I say that the boss made me stay until 10 p.m. make का past tense क्या है? made. To force by the subject towards the agent of verb, यानी कि किसी भी सब्जेक्ट का जो एक्शन कर रहा है उसके ऊपर फोर्सली उस काम को करवाना। जैसे मैंने अभी जो एग्जाम्पल दिया, let's talk about that. The boss made me stay until 10 p.m. बॉस ने मुझे 10 बजे तक ठहराया। तो यहाँ पे क्या है? मेरा जो स्टे करना है, ठहरना है, वो किसके द्वारा हुआ? किसके फोर्स से हुआ? बॉस के थ्रू। द बॉस मेड मी स्टे अंटिल 10 p.m. ओके, व्हेन आई से मेक द रीडिंग, हियर आई एम कमांडिंग यू, आई एम फोर्सिंग यू to make the reading of this paragraph. Okay, you are doing this. Okay, so in that manner, when you have causal, any cause for the action, that time whatever the verb is used is called causal auxiliaries, and we have causal auxiliaries 7 in number. Generally we have 7 auxiliaries which used as causal. The first one is make / you can say force, have / get, let, allow and help. These all are causative words which are called causal auxiliaries. Okay, as like when I say my father made me clean the car. मेरे फादर ने मुझसे कार साफ कराई। यहाँ पे मैंने कार साफ किया, मैं क्या हूँ? मैं हूँ एजेंट ऑफ वर्ब, क्योंकि जो एक्शन हो रहा है वो मेरे द्वारा हो रहा है। जैसे कि मैं कार साफ कर रही हूँ, मेरा एक्शन क्या है? कार साफ करना, क्लीनिंग द कार। तो मैं क्या हुआ? एजेंट ऑफ द वर्ब। लेकिन मैं किसके पावर के थ्रू, मीन्स किसके द्वारा काम पे लगा हूँ? मेरे फादर के। माई फादर मेड मी, मेरे पिताजी ने मुझसे कार साफ करवाई। ठीक है, तो इस तरह से जो मेरा जो मेन सब्जेक्ट है वो क्या है? मेरे फादर ने मुझसे काम करवाया। तो हियर द सब्जेक्ट इज माय फादर, और मैं क्या हूँ? एजेंट ऑफ वर्ब हूँ। यहाँ पे मेड वर्ड क्या है? कॉजल ऑक्सिलरी है। आई थिंक नाउ यू हैव अंडरस्टूड that what are causal auxiliaries. Okay, so remember that there are 7 main causative verbs, and they are make, force, have, get, let, allow and help. Okay, so remember this. I'll see you next class. Thank you.